Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start new lecture of nuclear physics, which is nuclear reaction. So first of all, we define what is nuclear reaction. It is a process in which certain composition take place in the nucleus when some incident particle is allowed to fall on it. Is called nuclear reaction. This incident particle which is allowed to fall on the target nucleus sometimes called projectile. And this projectile or incident particle might be a gamma ray photon, any charged particle like proton, deuteron, alpha particle, electron, positron, or a neutral particle, neutron. So on the basis of nature of incident particle and target nucleus, nuclear reaction is divided into so many categories. The standard form of the nuclear reaction is given on the board. A plus capital X, capital Y plus B, where A is the incident particle, which might be gamma ray photon, an electron, positron, alpha particle, deuteron, or a neutral neutron. While capital X is the target nucleus, capital Y is the product nucleus, and small b is the emitted particles, which may be any nucleons, proton or neutron, gamma ray photon, alpha particle, deuteron, or so on. We can observe this B would be changed by reaction to reaction. When we study different type of nuclear reaction, you can see that B might be different. In 1990, Lord Rutherford proposed first nuclear reaction in the history when he bombarded alpha particle on nitrogen nucleus. Nitrogen is transformed into oxygen isotope along with proton. This was the first nuclear reaction in the history made by Lord Rutherford when he used an alpha particle having kinetic energy 7.7 million electron volt after emitted from radioactive source. So you can see that here A is alpha particles, helium-24, target nucleus capital X is nitrogen nucleus, and emitted particle is proton, H11 means proton, while product nucleus is oxygen isotope, OH17. In this particular reaction, you have observed that the law of conservation of charge, nucleon number, as well as law of conservation of energy, momentum, and other conservation law must be conserved. If we consider nucleons number, or law of conservation of charge, the left hand side, in the subscript you can see 7 plus 2, 9, and on the right hand side 8 plus 1, 9. On the left hand side, the superscript stands for 14 plus 4, 18, and on the right hand side 17 plus 1, 18. So nucleon number remain conserved. So during any nuclear reaction process, all conservation law must be conserved, like law of conservation of energy, mass, law of conservation of charge, law of conservation of nucleon number, law of conservation of linear momentum, angular momentum, law of conservation of spin, law of conservation of parity. All these laws should be conserved. Then nuclear reaction may take place. There are various categories on which nuclear reaction may be divided or classified. Few of them we will discuss over here. First of all, elastic scattering, or sometimes you can say elastic pulling. When an incident particle suffered elastic pulling with target nucleus, what happened to the product nucleus and emitted particle? This is one of the most important nuclear reactions in the history. This reaction was also observed by Lord Rutherford when he observed scattering of alpha particle through gold foil. It was the famous experiment of Rutherford scattering of alpha particle through gold foil. In this particular reaction, incident particle A is alpha particle and target nucleus is gold foil.
gold nucleus. Atomic number 79 and mass number 197. And you can see that capital Y, product nucleus, again is gold without changing any charge number and mass number. And emitted particle small b is again alpha particles. So in this particular reaction, A equal to B, incident particle and emitted particle are same in nature, which is alpha particle. And target nucleus and product nucleus also remain same, which is gold nucleus. So from this observation we can say, when an incident particle like alpha particle is allowed to fall on the gold nucleus, alpha particle is scattered in various directions without loss of its energy. Only direction of motion of incoming alpha particle is changed because of mass of electric field of the target nucleus, which is gold. तो इसमें क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल ने सिर्फ अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या किया, चेंज किया और किसी किस्म की एनर्जी लॉस नहीं की. देयर इज नो लॉस और रिडक्शन इन एनर्जी बाय अल्फा पार्टिकल टेक प्लेस, ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज. तो इस किस्म के रिएक्शन को क्या कहेंगे, इलास्टिक स्कैटर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इज इट क्लियर कि इसमें ना तो कंपाउंड न्यूक्लियस बना है, ना ही नया प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना है. इंसिडेंट पार्टिकल भी वही है और एमिटेड पार्टिकल भी वही है. टारगेट न्यूक्लियस भी वही है और प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी वही है. क्योंकि इनकमिंग अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड न्यूक्लियस के करीब आता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, गोल्ड न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. तो कूलम रिपल्शन फोर्स की वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा. तो इस किस्म के रिएक्शन को कहते इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन और इलास्टिक scattering process. Next one, inelastic scattering. In case of inelastic scattering, when we use incident particle on the target nucleus, incident particle lost some of its kinetic energy. What happens to the energy of target nucleus? When incident particle collide or interact with the target nucleus, and as a result reduction in kinetic energy of incident particles take place, this will appear in the form of this, or you can say this will increase internal energy of the target nucleus, or you can see the incident kinetic energy of incoming projectile is transformed into internal energy of the target nucleus, and as a result target nucleus tends to raise their high excited state, and as a result some emitted particle is also some particle is also emitted out, which might be proton, which might be gamma ray photon, which might be neutron, which might be deuteron, or so on. तो दिस इज इनइलास्टिक स्कैटरिंग. तो इनइलास्टिक स्कैटरिंग में क्या हुआ कि इंसिडेंट पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है. तो लॉस करने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टारगेट न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी. तो इसकी एग्जांपल, जब आप प्रोजेक्टाइल H11 मीन प्रोटॉन किस पे फॉल कर रहे हैं, लिथियम 37 पे. तो देखिए प्रोटॉन क्या करता है, टारगेट न्यूक्लियस लिथियम 37 से इंटरैक्ट करता है, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. स्टार स्टैंड फॉर एक्साइटेड स्टेट, और एज अ रिजल्ट प्रोटॉन एमिट आउट हो जाता है. तो दिस इज द इनइलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन और इनइलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, फोटो डिसइंटीग्रेशन. Photo disintegration is a very common or famous nuclear reaction in which gamma ray photon act as a projectile or incident particle. When a gamma ray photon is allowed to fall on the target nucleus, as a result, target nucleus disintegrate into different number of nucleons and different numbers of particles. In this particular reaction, a gamma ray photon suffer collision with deuteron nucleus. Deuterium nucleus of deuterium. Deuteron. When gamma ray photon interact with deuteron, and as a result we know that deuteron contains single proton and single neutron. After interacting with gamma ray photon, proton and neutron
न्यूट्रॉन न्यूक्लियस ब्रेक अप, disintegrate into single proton and single neutron. प्रोटॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा और न्यूट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये वो बड़ा फेमस रिएक्शन है जब हमने बाइंडिंग एनर्जी को स्टडी किया था कि जब हम गैमा रे फोटॉन 2.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल करते हैं तो न्यूट्रॉन के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाउंड स्टेट में है, गैमा रे से इंटरैक्ट करने के बाद वो बाउंड स्टेट वाला न्यूक्लियस क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है और आपको एज ए रिजल्ट फ्री स्टेट में सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो इसे फोटो डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। इसमें इंसिडेंट पार्टिकल वेल एब्जॉर्ब हो गया इनसाइड द टारगेट न्यूक्लियस। तो इसमें ये पता चला कि इंसिडेंट पार्टिकल फर्स्ट कैप्चर्ड होगा, कैप्चर होने के बाद वो अपनी एनर्जी टारगेट न्यूक्लियस को देगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी सफिशिएंट इंक्रीज हो जाएगी कि वो टारगेट न्यूक्लियस दो हिस्सों में ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के बाद आपको फ्री स्टेट में सिंगल प्रोटॉन और सिंगल न्यूट्रॉन दे रहा है। रेडियोएक्टिव कैप्चर, रेडियोएक्टिव कैप्चर ये होगा कि इसमें इंसिडेंट पार्टिकल्स जो प्रोजेक्टाइल होगा वो टारगेट न्यूक्लियस में फॉल करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी टारगेट न्यूक्लियस को ट्रांसफर करेगा। एज ए रिजल्ट टारगेट न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन जब वो वापस आएगा टारगेट न्यूक्लियस तो इट शुड इमिट गैमा रे फोटॉन। तो दिस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव कैप्चर प्रोसेस। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव कैप्चर प्रोसेस व्हेन इंसिडेंट पार्टिकल इज वेल एब्जॉर्ब्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस टेक प्लेस इन एक्साइटेड स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ compound nucleus take place in excited state and during the excitation a gamma ray photon is emitted out. Next one, spontaneous reaction. Spontaneous nuclear reaction. All naturally radioactive reaction are spontaneously in nature. Are naturally radioactive nuclear reaction, whether they are alpha decay, beta decay or gamma decay. तो यहाँ पर मैंने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में यूरानियम का रिएक्शन लिखा है। यूरानियम 9238 स्पॉन्टेनियसली जब डिके होता है, जब ये डिके होता है अल्फा इमिशन में तो आपको आउटपुट में प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मिलता है, थोरियम मिलता है। तो याद रख लो इसमें इंसिडेंट पार्टिकल की जरूरत पेश नहीं आती है। तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल की को यूटिलाइज ना किया जाए वो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। और जो अब तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं जिसमें हम एक को एज ए इंसिडेंट पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज करते हैं और कंपाउंड न्यूक्लियस की कंपोजिशन चेंज हो जाती है और साथ में कोई पार्टिकल भी इमिट होता है, जिसे इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। तो वो मैंने स्टार्ट में इसलिए नहीं बताया कि यहाँ आके मैं वजाहत करना चाह रहा था। तो a process in which composition take place in the structure of a nucleus when some incident particle is allowed to fall on it is called induced nuclear reaction. तो ये induced nuclear reaction हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ के क्लियर हो गया कि रेडियोएक्टिव सीरीज के जितने रिएक्शन थे वो स्पॉन्टेनियस थे, वो इटसेल्फ स्पॉन्टेनियसली डिके हो रहे थे और बाकी जो इंसिडेंट पार्टिकल आपको यूटिलाइज करेंगे टारगेट न्यूक्लियस पे वो इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। लास्ट वन स्पेलेशन रिएक्शन। स्पेलेशन रिएक्शन ये है कि जिसमें इसको फिशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्पेलेशन रिएक्शन in which some incident particle is allowed to fall on heavy target nucleus. इससे पहले जो हमने यूज किए वो लाइटर टारगेट न्यूक्लियस थे। तो यहाँ पर देखें आप न्यूट्रॉन को फॉल कर रहे हो यूरानियम 9235 पे। तो इसमें क्या होगा, तीन स्टेप्स होंगे कि कैप्चर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल बाय टारगेट न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस and then splitting of compound nucleus into two intermediate nuclei along with emitted neutron and tremendous amount of energy is also emitted out during the process. तो यूरानियम टारगेट न्यूक्लियस है, इंसिडेंट पार्टिकल न्यूट्रॉन है प्रोजेक्टाइल। इसमें बीच में क्या होगा, कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, वो कंपाउंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा मोलब्डेनियम और ज़ीनान या क्रिप्टॉन और इसके अलावा कोई और भी फिशन फ्रैगमेंट कहा जाता है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं और टू न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं। तो इस किस्म के रिएक्शन को क्या कहेंगे, स्पेलेशन रिएक्शन। तो ये आप याद रख लें, जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है बेसिकली वो कौन सा रिएक्शन है, स्पेलेशन। तो ये तो न्यूक्लियर रिएक्शन की टाइप्स होंगी।
अब न्यूक्लियर रिएक्शन का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इट इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. ड्यूरिंग एनी न्यूक्लियर रिएक्शन एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड. जिस तरह फिशन का प्रोसेस है, तो फिशन प्रोसेस में जो न्यूक्लियर एनर्जी, जो फिशन में हैवी न्यूक्लियर जब डिसइंटीग्रेट होता है इंटरन्यूक्लियर न्यूक्लियाई में, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. ऑलमोस्ट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर फिशन प्रोड्यूस होती है. पर फिशन में जब when one uranium nucleus is disintegrate into two intermediate nuclei, almost 200 million electron volt energy is released. So think about when you explode a few sample of uranium, like 1 kg uranium, 2 kg uranium, so how much energy is released? So this is very tremendous amount of energy is released. So that is why we call nuclear reaction is a tool for production energy. Yeah, it is a rich source of energy. दूसरी, composition of nucleus को study करती हैं, structure of the nucleus को study करती हैं by using nuclear reaction. और न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस के साथ इंसिडेंट पार्टिकल जब इंटरैक्ट करता है तो स्कैटरिंग टेक्निक से हमें ये इल्म होता है कि न्यूक्लियन जो है उनकी कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियन किससे मिलके बनी है. ये जो क्वार्क्स मॉडल है कि न्यूट्रॉन 3 क्वार्क्स और प्रोटॉन भी 3 क्वार्क्स से बना है और कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी चीजें हमें कौन सी चीज बता रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन. डिस्कवरी ऑफ न्यू पार्टिकल्स, कि जब आप इंसिडेंट पार्टिकल न्यूक्लियस पे फॉल करते हैं तो आपको कोई ना कोई नया पार्टिकल न्यूक्लियस से लिबरेट होकर बाय प्रोड्यूस होता है, नजर आता है. तो न्यू पार्टिकल की डिस्कवरी भी आपको हेल्प हो रही है. तो ये कुछ मेन यूजेस हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. अब आता है कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन. समटाइम इट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी. क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए देखें, standard form of nuclear reaction A plus capital X, capital Y plus B plus Q. Capital X is target nucleus, A is incident particle, capital Y is product nucleus and B is emitted particles. In order to calculate Q value of nuclear reaction or disintegration energy, we assume that target nucleus is at rest. Nucleus is in stationary state. So its kinetic energy should be equal to 0. One thing you should keep in mind while calculating Q value of nuclear reaction, that we assume that target nucleus is at rest, so its kinetic energy K capital X should be equal to 0. And then we apply a law of conservation of energy to this standard form. So what will be the Q value of nuclear reaction? वो से देखें, Ky plus Kb, kinetic energy of product nucleus plus kinetic energy of emitted particle. इन दोनों की kinetic energy के सम में से kinetic energy of incident particle माइनस कर दें. तो डिफरेंस ले लें, क्योंकि टारगेट न्यूक्लियस की kinetic energy तो 0 होगी, तो इन दोनों की जो kinetic energy थी, लेट्स गो 5 MeV इसकी है, 2 MeV इसकी है, तो 5 plus 2 7 माइनस इंसिडेंट पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस करें तो आपको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यों मिल जाएगी. तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ये हमने अल्फा इक्वेशन में भी किया था, डिस्कस हुआ है. इसको अप्लाई करना है आप. अब इसको अप्लाई कैसे करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे वो जो देनी है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने जा रहा हूँ. तो जब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूंगा तो फॉर एग्जांपल इंसिडेंट पार्टिकल स्मॉल a पे, तो टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ A स्टैंड फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, प्लस टोटल एनर्जी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस कैपिटल X इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस प्लस टोटल एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल. इज इट क्लियर? अब टोटल एनर्जी में दो चीजें होंगी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजिक्स है, हम इसको सब एटॉमिक स्केल पे ले लेंगे. तो जब मैं टोटल एनर्जी ऑफ A लूंगा तो इससे ये मुराद होगा रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा. इसी तरह रेस्ट मास एनर्जी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस. फिर राइट साइड पे टोटल एनर्जी ऑफ कैपिटल Y से क्या मुराद होगा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ
प्रोडक्ट न्यूक्लियस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस। और स्मॉल b के लिए क्या होगा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इमिटेड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड पार्टिकल। तो इस तरह इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये अप्लाई करें तो वो करें mc स्क्वायर। व्हाट इज mc स्क्वायर? mc स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। आगे जाएं, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस कैपिटल M कैपिटल X स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हमने क्या कहा है, इज इट क्लियर हो गया? राइट साइड पे जाएं, कैपिटल Y के लिए रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस mc स्क्वायर नीचे कैपिटल Y, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस कैपिटल Y, फिर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इमिटेड पार्टिकल mbc स्क्वायर स्मॉल b आ जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड पार्टिकल। इज इट क्लियर? अब आप रेस्ट मास एनर्जी को एक तरफ कर लें और काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ कर लें। तो फर्स्ट टर्म mac स्क्वायर प्लस m कैपिटल X स्क्वायर और राइट साइड से माइनस my स्क्वायर और माइनस mbc स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस k कैपिटल Y प्लस kb ये एज इट इज, और लेफ्ट साइड से k इस तरफ ले जाए, ये आ गया। इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हमने इक्वेशन 1 में ये जो राइट साइड बना है इसको क्या कहा हुआ है, q वैल्यू। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को यूज करता हूं तो राइट साइड पे जो सम आता है ये क्या हो गया, कैपिटल Q, और लेफ्ट साइड पे देखिए c स्क्वायर सब में से कॉमन है, इसको कॉमन लें ma प्लस mx, ये मास सम हो गया ना, यानी इंसिडेंट पार्टिकल प्रोजेक्टाइल का मास प्लस टारगेट न्यूक्लियस का मास, इन दोनों का मास, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें और बीच में क्या हो जाएगा, m कैपिटल Y प्लस m स्मॉल b, यानी प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मास और इमिटेड पार्टिकल मास, ये सम कर लें और c स्क्वायर बाय सीजीएस यूनिट को यूज करें तो c स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ये 1 हो गया। तो आपके पास कैपिटल Q डिसइंटीग्रेशन एनर्जी किसकी बुला दी, ma प्लस mx, प्रोजेक्टाइल और टारगेट न्यूक्लियस की मास का सम माइनस प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मास और इमिटेड पार्टिकल के मास का सम। तो एनर्जी फ्लो मास सम ऑफ द masses flowing into the reaction is equal to sum of the masses flowing out of the reaction। लेफ्ट साइड पे मास सम और राइट साइड का मास सम। तो यहाँ से Q वैल्यू जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। इसी की निस्बत से 3 रिएक्शन आपके सामने आएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेक्चर का कि इफ ma प्लस mx इज ग्रेटर देन my प्लस mb, यानी जब आप इंसिडेंट पार्टिकल यूज करोगे, इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस पे, तो इंसिडेंट पार्टिकल का मास और टारगेट न्यूक्लियस का मास, इन दोनों का सम जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना है वो और जो इमिटेड पार्टिकल है उनसे ग्रेटर आ जाए तो फिर Q क्या होगा, Q ग्रेटर देन 0 होगा। Such kind of reaction is called exothermal nuclear reaction or exoalgenic nuclear reaction। Is it clear? अब इसको आप एग्जांपल में देखें। एग्जांपल में कि A जो है, A की जगह मैंने क्या लिया, H11 प्रोटॉन और टारगेट न्यूक्लियस लिथियम 3 और आपको प्रोडक्ट न्यूक्लियस 2 ग्रुप ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल मिला है और इमिटेड पार्टिकल भी अल्फा पार्टिकल है। तो यहाँ पर जो Q आएगा आप कैलकुलेट करें, बेशक ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे, Q पॉजिटिव आएगा। क्लियर होगी ये बात? एक्सोथर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन और एक्सोअल्जनिक न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें Q क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड का सम राइट साइड के सम से क्यों ग्रेटर आया है। तो आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए कि ये अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या ये अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। याद रखो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो मास है वो क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये राइट साइड पे प्रोडक्ट न्यूक्लियस और इमिटेड पार्टिकल के मास का सम लेफ्ट साइड के सम ऑफ मास से कम क्यों आएगा, very good, some fraction of masses is converted into energy, that is why mass sum is right side का mass sum less है left side के mass sum से, या left side का mass sum greater है right side के mass sum से। clear हो गया। next second category, अगर right side का mass sum my plus mb greater हो जाए ma plus mx से, तो फिर आप इक्वेशन 4 को देखें, जब राइट साइड का मास सम ग्रेटर है लेफ्ट साइड से तो Q क्या होगा, नेगेटिव होगा।
और अगर Q नेगेटिव है then this reaction is called endothermic nuclear reaction or endoalgic nuclear reaction. तो ये रदरफोर्ड का फेमस रिएक्शन है, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इन द हिस्ट्री. दिस इज बेसिकली एंडोथर्मिक इन नेचर और एंडोएल्जिक इन नेचर, जिसमें अल्फा पार्टिकल को एज ए प्रोजेक्टाइल यूज किया नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे और नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्म हो गया ऑक्सीजन आइसोटोप में और एलान में प्रोटॉन एमिटेड पार्टिकल है. तो यहाँ आप ये सोचें कि राइट साइड का मास हम ग्रेटर जी हुआ है, राइट साइड में एनर्जी कि यहाँ पर सोचने की बात ये है अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव. नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे फाल कर रही है तो नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है. तो कूलम रिपल्शन फोर्सेस है ना. तो अगर आपने इंसिडेंट पार्टिकल प्रोजेक्टाइल को नाइट्रोजन न्यूक्लियाई तक ले जाना है तो यू हैव टू सप्लाई सफिशिएंट एनर्जी टू द इनकमिंग अल्फा पार्टिकल्स. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने सरप्लस काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को दी है नाइट्रोजन न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करने के लिए, दिस fraction of kinetic energy is transformed into masses. तो यहाँ पर पहले में मास एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है. तो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc स्क्वायर ये यूटिलाइज हो रही है. तो इसलिए राइट साइड का मास सम क्या हो गया, ग्रेटर हो गया. तो इसको एंडोएल्जिक रिएक्शन कहते हैं. तो इससे Q नेगेटिव आएगा. अब तीसरा और लास्ट क्लास जो तो मैंने बताया था ये मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है. टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में मैंने आपको बताया था इलास्टिक स्कैटरिंग. तो इलास्टिक स्कैटरिंग को मैंने प्रूव किया है कि इफ My + Mb इक्वेशन 4 में यानी ये मास सम Ma + Mx इक्वल हो जाए My + Mb की, तो फिर Q क्या होगा, 0. यानी आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी. डिसइंटीग्रेशन एनर्जी शुड बी इक्वल टू 0 एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन projectile only changes its direction of motion near the field of the nucleus without loss of energy. यानी ये वो तब पॉसिबल है जब इंसिडेंट पार्टिकल और एमिटेड पार्टिकल A = B, इधर भी मैंने बताया था, और कैपिटल X और कैपिटल Y सेम हो, टारगेट न्यूक्लियस और प्रोडक्ट न्यूक्लियस सेम हो. जैसे स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू गोल्ड फाइल, तो इसमें क्या हुआ है, अल्फा पार्टिकल इलास्टिकली सिर्फ गोल्ड फाइल की विसिनिटी से न्यूक्लियस से स्कैटर्ड हुआ है विदाउट लॉस इन एनर्जी. तो यहाँ पर देखें गोल्ड टारगेट न्यूक्लियस था, तो प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी क्या है, गोल्ड ही है. अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल था, तो इमिटेड पार्टिकल भी क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल है. तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आपको Q = 0 मिल रहा है. सिचुएशन क्या है कि when A = B and capital X = capital Y. तो इस तरह on the basis of Q value of nuclear reaction आपने न्यूक्लियर रिएक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग, और इसके अलावा यहाँ पर सोनी एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इलास्टिक स्कैटरिंग. ये 3 चीज़ें आपको मिली. तो ये था न्यूक्लियर रिएक्शन, उसकी वेरियस टाइप्स और Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेमैटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को भी स्टडी करेंगे.